हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ैबुन निसा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड वी हैव टू टेक सम डिसीजंस such as we have to take, let's take an example to discuss this. There's a situation which is given for a manufacturer. He has two types of a model, model M1 and model M2. Each M1 model requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. So the problem with this is the manufacturer has one model M1. He is dealing with two models actually, model M1 and model M2. And this model M1 is needs 2 hours of grinding and 4 hours of polishing, and the model M2 needs 2 hours of grinding and 5 hours of polishing. The other information which is given for the manufacturer is he has the grinders and the polishers, and each grinder works for 40 hours a week. So the grinder is working for 40 hours a week, whereas his polishers are working for 60 hours a week. So, and the profit from model M1 is rupees 3. Profit from model M1 is rupees 3 and M2 is rupees 4. And one more information is given. He has two grinders and 3 polishers. So when we have such kind of situation, when we have certain constraints, yani limited resources, and we have to make a decision how can we utilize these polishers, So when this kind of a problem is in front of you, where you have some resources, that is a limited resources, and we have to maximize our profit. So here it is very important to take the appropriate decision how much model M1 and how much model M2 we should be manufactured, so that we can get the optimum solution. Optimum here, so in the linear programming problem we are actually seeking for the optimum solution. What is the optimum solution? Optimum solution where I am getting the most benefit. So in case as the problem is of the profit, तो जिस भी सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा वो हमारे पास ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा. अगर कॉस्ट की प्रॉब्लम होती तो जहाँ पे हमारी कॉस्ट मिनिमम होती वो हमारे लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन होता. So यहाँ पे अब हम फर्स्ट स्टेप इज आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, हाउ वी डिसाइड विच मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन इज द बेस्ट फॉर अस. इसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि पहले हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे. So with the information given to us, that is the manufacturer is in dealing with the two models, we go for the mathematical formulation of our problem. So mathematical formulation में हम so step 1 we'll discuss it by step to make it more clear to you all. So step 1 is the mathematical formulation. First thing which is given to us is our problem. We represent it with a Z, that is the profit. Problem is, यानी the question is with which we are going to work is कि हम किस तरीके से कितना मॉडल M1 बनाएं, कितना मॉडल M2 बनाएं कि हमारा आउटपुट ऑप्टिमम हो. मॉडल M1 को मैं बोल रही हूँ X और मॉडल M2 को मैं बोलूँगी Y. मॉडल M1 बनाने में मेरा प्रॉफिट था 3 रुपीज़, मॉडल M2 को बनाने के लिए मेरा प्रॉफिट था 4 रुपीज़. सो माई टोटल प्रॉफिट विल बी 3x प्लस 4y. दिस इज माई ऑब्जेक्टिव. आई हैव सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ मेरे पास लिमिटेशंस हैं. तो कॉन्स्टेंट्स आर, सो माई कॉन्स्टेंट्स आर, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट. कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारे लिमिटेशन है जिसके अंदर हमें डिसीजन लेना है. मेरा लिमिटेशन ये है कि मॉडल M1 को बनाने के लिए 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग चाहिए थी, और यानी कि मॉडल M1 को बनाने के लिए मॉडल M1 वॉज X1 और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, और मॉडल M2 को बनाने के लिए हमें कितनी ग्राइंडिंग चाहिए? वी नीड
So what is another question? Model 2 hours of grinding and 5 hours. Model 2 has 3 hours of whatever the other thing is. It needs, model M2 needs, for example, let it be the 4 hours of grinding. अगर हमारे पास 4 hours of grinding मॉडल M2 को बनाने के लिए चाहिए थी, तो ये हमारे पास पहला लिमिटेशन था. दूसरा लिमिटेशन वॉज हमारा मॉडल जो दूसरा है उसमें हमें पॉलिशिंग का भी लिमिटेशन है. वी नीड द 5 hours ऑफ पॉलिशिंग मॉडल M1 एंड एक को हमने x माना था और एक को हमने y माना था. तो हम इसको x1 x2 ना लिख के हम इसे x and y ही लिखते हैं ताकि क्लैरिटी रहे और कोई क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आसानी हो. मॉडल सेकंड मॉडल को बनाने के लिए हमें जो पॉलिशिंग की ज़रूरत थी दैट वाज द 3 hours ऑफ पॉलिशिंग. ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन है. और उसके साथ अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने पॉलिशिंग अवेलेबल है. हमारे पास पॉलिशिंग के लिए हमारे पास 2 पॉलिशर्स हैं. We have 3 polishers and they work for 60 hours per week. We have 3 polishers that works 60 hours per week. यानी कि एक वीक में हमारे पास पॉलिशिंग के कितने आवर्स हो गए? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 180. सो पॉलिशिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास 180. तो यहाँ पे हम इसलिए इक्वल्स टू नहीं लगा सकते. वी कैन यूज देम लेस देन और इक्वल टू 180 आवर्स. So this will be not a equal to, but it will be less than and equal to 180 hours. And we have 2 grinders and grinders work for 40 hours in a week. तो अगर हमारे पास 2 grinders हैं 40 hours a week, so we have a maximum 80 hours for grinding. We have maximum 80 hours of grinding. Maximum means we can use less than and equal to 80 hours. So this is called the mathematical formulation. And one more thing, जब भी हम मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में होगा. तो एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आती है कि x is always greater than equal to 0 and y is always greater than equal to 0. This is the first step of solving the linear programming problem, where with the help of your statement we will frame it mathematically. So इसमें 2 चीज़ें आ गई. एक हमारे पास आगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक हमारे आगे कुछ कॉन्स्टेंट्स. एंड आगे हम इसे डील करेंगे. बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक मैं ये बताना चाहूँगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं. एक होता है हमारा ग्राफिकल मैथड और एक होता है सिंप्लेक्स मैथड. ग्राफिकल मैथड पहले हम डिस्कस करेंगे. दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई. देन विल गो फॉर द सिंप्लेक्स मैथड. वन थिंग आई वांट टू क्लियर है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है लेस देन एंड इक्वल टू. सो व्हाट इज दिस? दीज आर द इनइक्वालिटीज. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. पहला स्टेप मैंने जैसे बोला कि ग्राफिकल मैथड है, तो वी विल बी putting these things, the values of x and y on a graph to come to any solution, to find a solution to our problem. And as we have the inequalities, so how can we show the inequalities on a graph? हम inequalities को ग्राफ में किस तरीके से हम शो करेंगे? तो ग्राफ में inequalities तो शो नहीं कर सकते because we have x axis and the y axis. And how can we show the x and y when we don't have the values of x and y? तो पहले हम inequalities को equations में convert करेंगे और equation को हम ग्राफ में शो करेंगे. How we do that? We convert these inequalities into the equation. 2x plus 4y equals to 80 and 5x plus 3y equals to 180. अब जब हमने इक्वल्स टू की जगह इनइक्वालिटी लिखा तो हम इसमें ये ज़रूर देखेंगे जब ग्राफ में हम शो करेंगे कि व्हाट इज़ द साइन हियर. यहाँ पे साइन था लेस देन एंड इक्वल टू. लेस देन एंड इक्वल टू का करने का क्या मतलब है? जब हम ग्राफ में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो यू वोंट गेट अ पॉइंट बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट द वैल्यू, यू डोंट हैव द इक्वेशन, यू गेट अ रीजन. लेस देन इक्वल टू का मतलब है आपको जो लाइन मिलेगी एक्स वाई का उसका नीचे का जो रीजन है वो आपका एरिया होगा, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ विजिबल रीजन. और सिमिलरली यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू की हम बात कर रहे हैं तो अगेन वी गेट अ रीजन और वो रीजन कहलाएगा आपका फिजिबल रीजन. एंड द रीजन विच वी गेट उसमें ही कहीं पे हमारा सोल्यूशन है. तो बाय सॉल्विंग दीज वैल्यूज वी विल कम टू द एरिया with which we have a solution. And in the next lecture I would like to tell you how to represent this linear problem in a graph and come to the solution of a problem. That's it for today. Thank you all of you.